السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. معزز شرکائے اجلاس، پردہ-نشین، خواتین اسلام، آج بہت مسرت اور بہت خوشی کا موقع ہے کہ آج سے 23 دن قبل سیرت کے دروس کا مبارک سلسلہ جو ہم نے شروع کیا تھا، بحمد اللہ ثم بحمد اللہ، آج وہ بڑی کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہونے جا رہا ہے. اور مدنی زندگی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے جو گوشے باقی رہ گئے ہیں، جن کا تذکرہ آج کے درس میں ہونا ہے، وہ دو باتیں جیسا کہ کل ہم نے آپ کے سامنے بتائی تھیں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج، اور دوسرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی تفصیلات. حضرات، کل ہم نے بتایا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے مکہ فتح کیا. فتح مکہ کے بعد جزیرہ عرب میں کس طرح اسلام کا بول بالا ہوا، اور کس طرح جزیرہ عرب کے کونے کونے سے مختلف وفود پیارے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کرنے کا اعلان کر رہے تھے. حضرات، اسلام کے غالب آنے کے بعد اب بس ایک حکم رہ گیا تھا جس پر عمل کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باقی تھا، اور وہ تھا فریضہ حج. پیارے نبی نے حج سن 10 ہجری میں کیا، یعنی اپنی وفات سے بس 2-2.5 مہینہ قبل. اپنی وفات سے 3 مہینہ قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں حج کیا. حج کرنے میں جو تاخیر ہوئی، اس کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ حج میں بہت ساری غلطیاں ہوا کرتی تھیں. جیسے ہم بتا چکے، حج کی عبادت اسلام سے پہلے بھی ہو رہی تھی. عرب کے لوگ کافر رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے، مشرک رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے، تو وہ حج میں بہت ساری غلطیاں کیا کرتے تھے. چنانچہ ان غلطیوں میں سے ایک بات یہ تھی کہ عرب کے لوگ برہنہ حج کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرتے تھے بیت اللہ کا. اور فلسفہ یہ تھا کہ جو کپڑے پہن کر صبح و شام ہم گناہ کرتے ہیں، وہ کپڑے پہن کر ہم اللہ کے گھر پہ حاضری نہیں دیں گے. جس طرح ماں کے پیٹ سے ہم آئے، اسی طرح مادر ذات برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف کریں گے، تاکہ کوئی لباس، کوئی کپڑا جس کو پہن کر ہم نے گناہ کیا ہو وہ ہمارے بدن پہ نہ ہو. ایک غلطی یہ ہوتی تھی. کفار تلبیہ کہتے تھے، اور کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک الا شریک ہوا لک تملک وما ملک. تلبیہ کرتے ہوئے کہتے ہوئے کہتے کہ پروردگار حاضر ہیں تیرے دربار پر، تیرا کوئی شریک نہیں، ہاں بس ایک کو ہم تیرے ساتھ شریک کرتے ہیں. ایک خدا ہے،
जिसे हम तेरे साथ शरीक करते हैं। हर कबीले का एक एक बुत होता था, तो हर कबीले वाला इल्ला शरीक कहकर अपने बुत का इस्तिस्ना करता था। कहता कि परवरदिगारा तेरे साथ कोई लायक इबादत नहीं, बस एक हमारा जो बुत हमारे कबीले का है, तेरे साथ बस उसको शरीक करते हैं हम। बहुत सारी गलतियां होती थी। यही वजह है कि सन 9 हिजरी में प्यारे नबी ने अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु को अमीरुल हुज्जाज बना के भेजा और अबू बकर को हुक्म दे दिया कि हज में ऐलान कर दो कि आइंदा साल से कोई मुशरिक हज नहीं करेगा, कोई काफिर हज नहीं करेगा, कोई ब्रहना और नंगा शख्स बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करेगा। इस तरह सन 9 हिजरी में हज में जो जो गलतियां होती थी, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जाकर ऐलान कर दिया और इस तरह हज जब उन गलतियों से पाक हो गया तो सन 10 हिजरी में खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम का ये 5वां फरीज़ा, इस्लाम का ये 5वां रुकन अदा करने के लिए तशरीफ़ ले गए। और आपके साथ इस हज में दूर दराज इलाकों से आए हुए मुसलमानों की तादाद, दूर दराज इलाकों से आए हुए सहाबा की तादाद 1,24,000 थी। और हजरत ये भी अजीब मुनासबत है कि प्यारे नबी के साथ हज में आपके जो सहाबा थे उनकी तादाद 1,24,000 है। और इब्ने हिब्बान के मुताबिक अल्लाह ने इस दुनिया में अपने जितने पैगंबर और रसूल भेजे उनकी तादाद भी 1,24,000 है। हाँ, क्या अजीब मुनासबत है। इस दुनिया में जितने पैगंबर अंबिया और रसूल आए, इब्ने हिब्बान की रिवायत के मुताबिक जिसे अल्लामा अलबानी ने हसन करार दिया है, 1,24,000 तमाम आदम अलैहिस्सलाम से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। और हज्जतुल वदा में आपके सहाबा की तादाद भी, आपके सामने मौजूद जो मजमा था उसकी तादाद भी 1,24,000। गोया ये इस बात की दलील, ये इस बात की अलामत, ये 1,24,000 का मजमा, ये 1,24,000 की तादाद में जो सहाबा जमा हैं, ये उस पैगंबर उस पैगाम के हामिल हैं, उस दीन के दाई हैं, उस तौहीद के अलमबरदार हैं, जिस पैगाम जिस दीन और जिस तौहीद की दावत के 1,24,000 अंबिया और रसूल ने दी है। 1,24,000 का ये मजमा 1,24,000 रसूलों और पैगंबरों के पैगाम का अमीन है, दाई है, मुबल्लिग है, मुनाद है। हजरात, मैं हज की ज़्यादा तफसीलात में जाना नहीं चाहता। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमलन हज कर दिखाया और आप सहाबा से कहे जा रहे थे, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम, लोगों मुझसे अपने हज के अरकान सीख लो, मुझसे अपने हज के अरकान सीख लो। यही वजह है कि आपने हज के बहुत सारे अरकान सवारी पर बैठ कर किए ताकि दूर दराज के लोग भी आपको देख लें, हज़ारों का मजमुआ लोग देख लें कि आप मनासिक हज कैसे अदा कर रहे हैं। खुज़ू अन्नी मनासिककुम, खुज़ू अन्नी मनासिककुम। और जब आपका हज मुकम्मल हो रहा था, प्यारे नबी ने मैदान अरफा में 1,24,000 सहाबा से ये इकरार ले लिया। क्या इकरार ले लिया? आपने पूछा, व अंतुम तुसअलूना अन्नी फमा अंतुम काइलून, लोगों कल तुम सब से हश्र के मैदान में मेरे बारे में सवाल होने वाला है, मेरे बारे में अल्लाह तुम सबसे पूछने वाला है। तुम मेरे उम्मती हो, मेरे सहाबा हो, बताओ तुम क्या जवाब दोगे? सारे सहाबा ने एक ज़बान होकर जवाब दिया कि नशहदु अन्नका क़द बल्लग़त व अद्दैत व नसहत। ऐ अल्लाह के नबी, हम गवाही देंगे कि आपने अल्लाह के दीन की अमानत को पहुंचा दिया, हर तरह से खैर चाहा, हर तरह से उम्मत की भलाई आपने चाही। और जब सारे सहाबा ने गवाही दे दी तो प्यारे नबी ने आसमान की जानिब उंगली उठा के 3 मरतबे आपने कहा, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाहुम्मा शहद। ऐ अल्लाह गवाह रह, ऐ अल्लाह गवाह रह, ऐ अल्लाह गवाह रह कि ये 1,24,000 का मजमा आज गवाही दे रहा है कि नबुव्वत और रिसालत की जो जिम्मेदारी तूने जो मेरे सुपर्द की थी, मैं उसको कमा हक़्क़हू अदा कर चुका हूँ। फिर आपने अपनी उम्मत को दावत व तबलीग की ये जिम्मेदारी अपनी उम्मत के हवाले करते हुए कहा, अला फल्युबल्लिग़िश शाहिदु मिनकुमुल गायब। कई नसीहतें करने के बाद कहा कि लोगों, आज तुम में से जो यहाँ मौजूद है, मेरे पैगाम को, मेरी नसीहतों को, मेरे दीन को उन लोगों तक पहुँचा दे जो यहाँ मौजूद नहीं है। और हजरात, इसी मैदान अरफा में वो आयत नाजिल हो गई
जिस आयत के बारे में एक यहूदी ने हज़रत उमर से कहा था कि अगर ये आयत हमारी तौरात में होती तो जिस दिन ये आयत नाजिल हुई उस दिन को हम ईद का दिन मना लेते। कहा कौन सी आयत? अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है, अपनी नेमत तुम पे तमाम कर दी है और इस्लाम को बहैसियत दीन तुम्हारे लिए मैंने मुंतखब कर लिया है, पसंद कर लिया है। ये आयत नाजिल हो गई और जब अरफा से फारिग होकर नबी अय्याम तशरीक़ के लिए मिना में ठहरे हुए थे तो मिना में वो सूरत नाजिल हो गई। मीना में वो सूरत नाजिल हो गई जो अगर सूरतों के एतबार से देखा जाए तो कुरान की सबसे आखिरी सूरत है, 114वीं सूरत, सूरतुन नस्र। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह वरअयत अन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु कान तव्वाबा। ये सूरत मीना के अय्याम में नाजिल हुई, जिस सूरत में ये बात बताई गई कि ऐ पैगंबर, जिस मिशन और जिस मकसद के तहत आपकी बेइज्जत हुई थी वो मकसद पूरा हो चुका, वो मिशन मुकम्मल हो चुका। अब आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। मतलब ये था इस सूरत के अंदर गोया ये पैगाम दिया जा रहा था दुनिया से वापसी का वक्त बहुत करीब आ चुका है। अब आपकी ज़िंदगी के गिने चुने अय्याम बाकी रह गए हैं, इसीलिए आपको इस्तिग़फ़ार की दावत दी गई। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं इस सूरत के नुज़ूल के बाद जो भी नमाज प्यारे नबी ने पढ़ी, रुकू में और सजदे में आप बाकायदा इस्तिग़फ़ार किया करते थे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा रब्बना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की हम्द के साथ इस्तिग़फ़ार किया करते थे, रुकू में भी और सजदे में भी। फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फिर के हुक्म इलाही की तामील में। हज़रात, हज के बाद की जो ज़िंदगी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो यूँ कहिए कि वही इलाही ने आपको इशारे किनायों में ख़बर दे दी थी, बता दिया था कि अब आपकी ज़िंदगी के गिने चुने अय्याम बाकी हैं। हज के बाद की ज़िंदगी को अगर हम देखेंगे तो सुभान अल्लाह, पूरी ज़िंदगी यूँ कहिए कि प्यारे ने भी बस तैयारी कर। वैसे तो एक मोमिन की पूरी ज़िंदगी वो आखिरत की तैयारी है, तो प्यारे नबी की पूरी ज़िंदगी भी आखिरत की तैयारी से इबारत है। लेकिन हज के बाद की आपकी ज़िंदगी के जो मामूलात थे वो साफ बता रहे थे कि वही इलाही ने आपको इशारे दे दिए हैं कि अब दुनिया में आपको ज़्यादा रहना नहीं है, आपके चल चलाव का वक्त बहुत करीब आ चुका है, आपकी वफ़ात बहुत करीब आ चुकी है। आसमान से नाजिल होने वाली वही ने आपको यह पैगाम दिया था, ऐ पैगंबर, आपको दुनिया में हमेशा रहना नहीं है, हमने आपको दुनिया में हमेशा रहना नहीं है। वमा जअलना लिबशरिन मिन क़ब्लिकल ख़ुल्द, ऐ पैगंबर, आपसे पहले किसी इंसान को हमने इस धरती पर हमेशा की जिंदगी नहीं दी है। अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून, अगर आपका इंतकाल हो जाए ये काफिर क्या इस धरती पे हमेशा रह जाएंगे? वही इलाही ने आपको साफ बता दिया, इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून। सूरह ज़ुमर की आयत है, ऐ पैगंबर, आपको भी मरना है और इन सारे इंसानों को भी मरना है। चुनांचे आप देखेंगे हज के बाद की जो ज़िंदगी है उस ज़िंदगी में कदम कदम पे आपने इशारे दिए, किनाए दिए, आपकी गुफ्तगू, आपकी बोल चाल, आपके आमाल, आपके इक़दाम, ये सब साफ बता रहे थे कि अब आप दुनिया से बस अलविदा होने वाले हैं और दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। मुआज़ बिन जबल, अल्लाहु अकबर, मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु को सन 10 हिजरी में यमन रवाना किया। यमन भेजते हुए मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु से जहाँ बहुत सारी बातें की, उसमें से एक बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई मुआज़ से, आसा अल्लाह तलक़ानी बाद आमी हादा, कहा कि मुआज़, उम्मीद यकीन करो कि आज के बाद शायद तुम्हारी मुलाकात मुझसे नहीं होगी। आसा अल्लाह तलक़ानी बाद आमी हादा, और फिर कहा कि मुआज़, आइंदा जब तुम मदीना लौट कर आओगे तुम्हारा गुजर मेरी मस्जिद पर से होगा और मेरी कब्र पर से होगा। मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह अन्हु इस जुमले को सुनकर टूट टूट कर रोए और फूट फूट कर रोए। प्यारे नबी का आखिरी दीदार ज़िंदगी में और प्यारे नबी की आखिरी मुलाकात थी। हज़रत आप देखिए, ज़िंदगी का आखिरी साल था, आपके मामूलात में कैसी बुनियादी तब्दीली आई। ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान है और आपका मामूल था रमज़ान में हमेशा एक अशरा 10 दिन एहतिकाफ करते थे, लेकिन 10 हिजरी का जो रमज़ान आपकी ज़िंदगी का आखिरी रमज़ान था, 10 हिजरी के रमज़ान में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिलाफ मामूल 2 अशरे एहतिकाफ किए, 20 दिन एहतिकाफ किए।
معمول ہمیشہ رمضان میں 10 دن کا تھا، لیکن آپ نے 20 دن اعتکاف کیے۔ یہ سب آپ اشارے دے رہے تھے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ آپ کا معمول تھا رمضان کے مہینے میں جبریل امین کو ایک مرتبہ پورا قرآن سناتے تھے، لیکن آپ کی زندگی کا آخری رمضان تھا، پیارے نبی نے جبریل امین کو 2 مرتبہ قرآن سنا کر ختم کیا۔ یہ سب اشارے دے رہے تھے یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ سفر کا مہینہ شروع ہوا، 11 ہجری محرم 11 ہجری ختم ہوا، سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ محرم، سفر، ربیع الاول میں آپ کی وفات ہوئی، وفات سے ایک مہینہ قبل سفر کا مہینہ شروع ہوا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ایک بات آئی، سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم احد کے پاس چلے گئے، احد پہاڑ کے پاس چلے گئے۔ کیوں گئے؟ اس لیے کہ وہاں احد پہاڑ کے دامن میں آپ کے ان 70 صحابہ کی قبریں تھیں، ان 70 صحابہ کی قبریں تھیں جو غزوہ احد میں شہید ہوئے تھے۔ پیارے نبی تشریف لے گئے اور جا کر خصوصاً اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کے حق میں دعائے مغفرت کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، واپس آنے کے بعد سفر کے مہینے ہی میں ایک رات اچانک اٹھے، آدھی رات میں آپ سیدھا بقیع تشریف لے گئے، بقیع قبرستان تشریف لے گئے اور جا کر وہاں بقیع میں جو آپ کے صحابہ مدفون ہیں، مسلمان مدفون ہیں، آپ نے ان سب کے حق میں خصوصیت کے ساتھ دعائے مغفرت کی، ان سب کے حق میں استغفار کیا۔ اور حضرات، جب ایک مرتبہ ساری امہات المومنین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، اسی سفر کے مہینے میں آپ کے ساتھ آپ کی بیٹی لخت جگر فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی تشریف فرما تھیں۔ پیارے نبی نے فاطمہ کو قریب کیا، ساری ازواج آپ کی بیٹھی ہیں، ساری بیویاں آپ کی بیٹھی ہیں، پیارے نبی نے فاطمہ کو قریب کیا، قریب کر کے کان میں کوئی بات کہی، سرگوشی کی۔ فاطمہ زارو قطار رونے لگیں تو پیارے نبی نے پھر فاطمہ کو قریب کیا، قریب کر کے پھر سے سرگوشی کی اور ان کے کان میں پھر کچھ کہا۔ فاطمہ بہت خوش ہو گئیں۔ مجلس ختم ہوئی، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پوچھا، کہا کہ فاطمہ بتاؤ پیارے نبی نے کیا کہا تھا، کیا فرمایا تھا؟ پہلے سرگوشی کی، تم رونے لگیں، پھر سرگوشی کی اور تم خوش ہو گئیں، بتاؤ کہ کیا فرمایا تھا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، لم اکن لافشی سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کے نبی کا راز ہے، میں اللہ کے نبی کے راز کو افشا نہیں کرنا چاہتی۔ حضرات، جب وفات ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فاطمہ سے پھر پوچھا۔ وہ بہت دور اندیش خاتون تھی مائی عائشہ، انہیں معلوم تھا کہ فاطمہ کے رونے کا مطلب یہ ہے وفات ہی سے متعلق کوئی بات کہی گئی ہوگی۔ مائی عائشہ نے کہا، فاطمہ اب تو بتاؤ پیارے نبی کی وفات ہو چکی ہے، اس دن آپ نے پیارے نبی نے تم سے کیا کہا تھا؟ پہلے تم روئی تھیں، پھر آپ نے سرگوشی کی اور تم خوش ہو گئیں۔ تو فاطمہ نے کہا رضی اللہ عنہ، اب میں بتاؤں گی۔ کہا، پہلے ابا جان نے مجھے قریب کر کے کہا کہ بیٹی دنیا سے میرے چل چلاؤ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ یہ سن کے جب میں رونے لگی تو ابا جان نے پھر مجھے قریب کیا، قریب کر کے کہا کہ بیٹا رونا مت، اس لیے کہ دنیا سے میرے جانے کے بعد میرے عزیزوں، میرے رشتہ داروں میں مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملنے والی تم ہی ہو۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ اور حضرات دیکھیے پیارے نبی کی پیشن گوئی کیسے پوری ہوئی۔ نبی کی وفات کے صرف اور صرف 6 مہینے بعد نبی کی یہ نوجوان بیٹی، جس نے اپنی زندگی کے 30 سال بھی پوری طرح سے مکمل نہ کیے تھے، نبی کی یہ نوجوان بیٹی اس دنیا سے چل بسی۔ حضرات، پیارے نبی اپنی گفتگو میں، اپنی تقریروں میں، اپنے خطابات میں جو ان دنوں ہو رہے تھے، آپ صاف اشارے دے رہے تھے۔ ایک مرتبہ آپ ممبر پہ چڑھے ہوئے، ممبر پہ بیٹھے، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے تقریر کی، ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے نصیحت کی، اور نصیحت کرتے ہوئے لوگوں سے ایک جملہ ارشاد فرمایا۔ آپ نے کہا، لوگوں، اگر میں نے تم میں سے کسی کی پیٹھ پہ کوڑے برسائے ہیں،
وہ ابھی مجھ سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے، یہ دیکھو میری پیٹھ حاضر ہے، وہ آئے اور مجھ سے بدلہ لے لے۔ اور لوگوں، اگر میں نے تم میں سے کسی کی عزت و آبرو کو ٹھیس پہنچائی ہے تو لو، یہ میری عزت و آبرو حاضر ہے، میری عزت و آبرو سے اسی دنیا میں بدلہ لے لو۔ پیارے نبی نے کہا میں دنیا سے اس حال میں جانا چاہتا ہوں کہ کسی انسان کا کوئی حق مجھ پہ باقی نہ رہے۔ حضرات، پتہ چلا پیارے نبی نے ہمیں یہ سبق دیا، اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ حشر کے میدان میں کھڑے ہونے سے پہلے، ملک الموت کا سامنا کرنے سے پہلے، اور خصوصاً جب انسان وہ اپنی یعنی کبر سنی میں مرض الموت کے قریب ہوتا ہے، انسان کو چاہیے کہ دوسرے انسانوں سے اس کے جو معاملات ہوتے ہیں، اس کے جو اختلافات ہوتے ہیں، اس کے جو مسئلے ہوتے ہیں، اس کے جو جھگڑے ہوتے ہیں، وہ حل کر لے۔ کسی کا حق اس پر ہو، پہلے حق ادا کرے، حق ادا کر کے اس دنیا سے جائے۔ جو شخص اس دنیا سے جاتے ہوئے لوگوں کے حقوق لے کے جائے گا، کسی کا مال ہڑپ کیا ہے، کسی کی عزت آبرو سے کھلواڑ کیا ہے، کسی کو ناحق مارا ہے، کسی کو ناحق ستایا ہے، کسی کو ناحق ظلم کیا ہے، ایسے شخص کا سفر آخرت آسان نہ ہوگا۔ ایسے شخص کے قدم سفر آخرت میں جنت کی طرف تیزی سے نہیں اٹھ سکتے۔ اسی لیے چاہتے ہو کہ عالم برزخ میں تمہارا سفر جنت کی سمت تیز سے تیز تر ہو، چاہتے ہو کہ حشر کے میدان میں تمہارے قدم جنت کی سمت تیزی سے بڑھیں، تو مرنے سے پہلے اس دنیا میں جن بندوں کے، جن مخلوقات کے حقوق عائد ہوتے ہیں، جن کے حقوق جان بوجھ کر یا انجانے میں ہڑپ کیے گئے ہیں، ان حقوق کو واپس کرو۔ یہ دیکھو، یہ نبی ہیں جنہوں نے کبھی کسی کو ستایا نہیں، جنہوں نے کبھی کسی پہ ظلم نہیں کیا، جنہوں نے کبھی کسی کو تکلیف نہیں دی، لیکن صلوات اللہ وسلام علیہ حشر کے میدان میں جواب دہی کا یہ احساس، آپ امت کو حق دے رہے ہیں، امت کو حق دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اگر کسی کو بدلہ لینا ہے ابھی مجھ سے بدلہ لے لے، میری پیٹھ پہ کوڑے برسا لے، کسی کی عزت و آبرو سے میں نے کھیلا ہے، اگر میری عزت و آبرو حاضر ہے اور وہ میری عزت و آبرو سے جو ہے بدلہ لے۔ حضرات، پیارے نبی کا مرض جسے مرض الموت کہا جاتا ہے، مرض الموت، جس مرض کے حوالے سے آپ موت کی دہلیز تک پہنچے، صلوات اللہ وسلام علیہ، یہ 29 صفر سے شروع ہوا۔ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی۔ 12 ربیع الاول سے پہلے 29 صفر کا مہینہ، جو دوسرا مہینہ محرم کے بعد 29 صفر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شروع ہوا، اور مرض ایسے شروع ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے کی نماز میں شریک تھے، بقیع کے قبرستان گئے ہوئے تھے، اور آپ واپس آ رہے تھے بقیع کے قبرستان سے کہ آپ کے سر میں شدید درد شروع ہوا، شدید درد شروع ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور آپ نے اپنے سر پر پٹی باندھ لی، ایک پٹی باندھ لی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ درد سر اتنا شدید تھا کہ آپ کے درد سر سے جو پٹی باندھی گئی تھی، جو کپڑا باندھا گیا تھا، وہ کپڑا گرم ہو گیا تھا۔ تاہم پیارے نبی نے مرض کے باوجود، تکلیف کے باوجود 5 نمازوں میں حاضری دیتے رہے اور امام بن کر نمازیں پڑھاتے رہے۔ وفات سے 1 ہفتہ قبل، اب آپ کی وفات کے لئے بس 1 ہفتہ باقی رہ گیا تھا، وفات سے 1 ہفتہ قبل آپ پوچھنے لگے این انا غدن، این انا غدن۔ آپ کی کئی بیویاں تھیں، باری باری ایک ایک دن ایک ایک بیوی کے پاس رہتے تھے۔ وفات سے 1 ہفتہ قبل آپ نے بار بار سوال کیا، کل میں کہاں رہوں گا، کل کس کی باری ہے، کل کس کی باری ہے۔ امہات المومنین سمجھ گئیں کہ پیارے نبی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا یہ اعزاز تھا، بڑے شرف کی بات تھی کہ پیارے نبی کی محبت کا جو حصہ حضرت عائشہ کو ملا، دوسری امہات المومنین کو اس قدر حصہ نہیں ملا۔ تاہم اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے بیویوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں نعوذ باللہ جانبداری سے کام لیا، ہرگز نہیں۔ حقوق میں کوئی تفریق نہیں کرتے تھے۔ عائشہ کو جو کھلاتے تھے وہی سب کو کھلاتے، عائشہ کو جو پلاتے وہی ساری امہات المومنین کو پلاتے، عائشہ کو جو پہناتے وہی ساری امہات المومنین کو پہناتے، عائشہ کو جتنی باری دیتے وہی باری ساری امہات المومنین کو دیتے۔ لیکن دل کا رجحان، دل کا میلان، یہ انسان کے کنٹرول سے باہر کی چیز ہے۔ پیارے نبی نے کہا
میں کل کہاں رہوں گا، کل کہاں رہوں گا۔ امہات المومنین سمجھ گئیں اور ساری امہات المومنین نے پیارے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے نبی آپ جہاں چاہیں جس کے گھر میں چاہیں رہیں، ہم سب خوش رہیں گی۔ تو پیارے نبی 7 دن قبل ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے گھر منتقل ہو گئے۔ ماں عائشہ کو یہ شرف حاصل ہوا، یہ شرف حاصل ہوا کہ پیارے نبی کی زندگی کے آخری ایام، پیارے نبی کی زندگی کے آخری لمحات ان کی نظروں کے سامنے ان کے گھر میں، اور ان کے لیے یہ بھی شرف کی بات تھی پیارے نبی کی روح قبض ہوئی تو پیارے نبی کا سر ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی گود میں تھا۔ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ان 7 دنوں کے درمیان پیارے نبی کی تکلیف بڑھتی تھی، پیارے نبی کی تکلیف بڑھتی تھی۔ میں معوذات کو پڑھ کر قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، سورۃ الاخلاص اور اسی طرح سے مسنون دعائیں پڑھ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا کرتی تھی، اور میں اپنا ہاتھ پھیرنے کے بجائے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لے کر میں آپ کے بدن پہ پھیرتی تھی، اس لیے کہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ سے زیادہ باعث خیر و برکت تھا۔ حضرات، چہارشنبے کا دن تھا، چہارشنبے کا دن، پیر کو آپ کی وفات ہونے والی ہے، پیر کو آپ کا انتقال ہونے والا ہے، پیر کو آپ دنیا سے رخصت ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے چہارشنبے کا دن، چہارشنبے کے دن آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، آپ کی تکلیف بہت بڑھ گئی، سخت بخار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تڑپ رہے ہیں۔ آپ نے کہا کہ مختلف کنویں کا پانی لاؤ اور مجھ پر 7 مشکیزوں کے ذریعے سے 7 مشکیزوں کا پانی مجھ پہ اونڈیلو۔ چنانچہ مختلف کنووں کا پانی لایا گیا اور اس پانی کے 7 مشکیزیں پیارے نبی پر اونڈیلے گئے اور پیارے نبی کو اس سے غسل دیا گیا۔ اور غسل کرنے کے بعد جب تھوڑی سی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا سا افاقہ محسوس ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر پہ پٹی باندھے ہوئے مسجد تشریف لائے۔ مسجد تشریف لا کر آپ نے نماز پڑھائی، نماز پڑھا کر ممبر پر بیٹھے۔ ممبر کا استعمال آپ صرف جمعہ میں نہیں کرتے تھے، جمعہ کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی جب بھی نصیحت کرنا ہو، وعظ کرنا ہو، آپ ممبر کا استعمال کرتے تھے۔ نماز پڑھانے کے بعد ممبر پر بیٹھے اور بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان عبدا خیرہ اللہ بین زہرۃ الدنیا وبین ما عنده فاختار ما عنده۔ پیارے نبی نے کہا کہ اللہ کا ایک بندہ ایسا ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا دنیا کی رونق یا جنت کی نعمتوں، آخرت کی نعمتوں کے درمیان۔ اس بندے نے دنیا کی رونقوں پر جنت کی نعمتوں کو ترجیح دی ہے۔ یہ بات آپ نے اشارے کنایوں میں فرمائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بات کا مطلب سمجھ گئے، زار و قطار رونے لگے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وفات سے پہلے ہر پیغمبر کو اختیار دیتا ہے، وفات سے پہلے، موت سے پہلے ہر پیغمبر کو ایک اختیار دیتا ہے، یوں کہیے کہ جیسے مشورہ لیا جا رہا، اور ہر پیغمبر اللہ سے ملنے، اللہ کے پاس جانے اور اللہ سے ملاقات کرنے ہی کو پسند کرتا ہے۔ تو پیارے نبی کا اشارہ اسی جانب تھا کہ ایک بندے کو اللہ نے اختیار دیا اور اس بندے نے جو ہے پسند کیا کہ وہ اللہ سے جا ملے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے مطلب یہ ہے کہ اب پیارے نبی بہت جلد رخصت ہونے والے ہیں، زارو قطار رونے لگے تھے۔ اور اسی خطبے میں پیارے نبی نے یہ جملہ بھی ارشاد فرمایا تھا، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا تھا، کہا کہ لوگوں میرے صحابہ بہت رہے، میرے ساتھ دینے والے بہت رہے، میرے مددگار بہت رہے، مجھ پر بہت ساروں کے احسانات ہیں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا ہوں، سب کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں چکا دیا ہوں۔ ایک ابو بکر ہے، میرا صحابی، میرا ساتھی ابو بکر ہے، جس کے احسانات کا بدلہ میں دنیا میں نہیں چکا سکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آخرت میں ابو بکر کے احسانات کا بدلہ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی ابو بکر صدیق کے احسانات کا بدلہ دے گا۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پر بیٹھ کر، اور یہ چہارشنبے کے دن کی بات تھی۔ جمعرات تک بھی آپ نماز پڑھا رہے تھے باقاعدہ، جمعرات کی مغرب کی نماز بھی آپ نے پڑھائی۔ اس دن جمعرات کی مغرب کی نماز میں آپ نے والمرسلات عرفا سورۃ المرسلات کی تلاوت کی۔ عشاء کی نماز کا وقت آیا، عشاء کی نماز کا وقت آیا، پیارے نبی امامت کے لیے اٹھنا چاہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ آپ نے کہا مجھے پانی نہلاؤ، پانی نہلاؤ۔ آپ کو پانی نہلایا گیا، پانی نہلایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
उठकर नमाज पढ़ाने के लिए जाने लगे कि फिर बेहोश होकर गिर पड़े। फिर होश में आए तो कहा कि मुझे फिर पानी नहलाओ। 3 मरतबे ऐसा हुआ कि 3 मरतबे पानी नहलाया गया, 3 मरतबे बेहोश हो गए। जब 3 मरतबे ऐसा हुआ तो प्यारे नबी ने कहा लोग मुंतज़िर हैं, मस्जिद में लोग मुंतज़िर हैं, लिहाजा अबू बकर से कहो कि वो नमाज पढ़ा दें। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा कहती हैं मैंने जब मेरे वालिद का नाम सुना तो मैंने चाहा कि अबू बकर ना पढ़ाएं। मैंने प्यारे नबी से कहा कि अल्लाह के नबी मेरे बाप अबू बकर बड़े रकीकुल क़ल्ब हैं, नरम दिल हैं, अब आपके मुकाम पे खड़े होंगे तो वो अपने आप पे काबू नहीं रख सकेंगे, ज़ारो क़ितार रोने लगेंगे। पर प्यारे नबी का मकसद, प्यारे नबी का इशारा खिलाफत की तरफ था कि मेरी अदम मौजूदगी में मेरे मुसल्ले पर खड़े होने का हक जिस तरह अबू बकर को है तो मेरी वफात के बाद खिलाफत का हक भी अबू बकर ही को हासिल है। ये मैसेज आप देना चाह रहे थे, इसलिए आपने कहा मुरू अबा बकर फल्युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो कि अबू बकर जो है इमाम बनकर लोगों को नमाज पढ़ाए। चुनांचे अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने जुमेरात की इशा से नमाज पढ़ाना शुरू किया। हजरात, हफ्ते का दिन था, अबू बकर जुमेरात की इशा से नमाज पढ़ा रहे हैं, 5 नमाजें अबू बकर पढ़ा रहे हैं। हफ्ते का दिन था, प्यारे नबी ने उधर नमाज जारी है मस्जिद में, अबू बकर इमाम बन के पढ़ा रहे हैं। थोड़ा अपनी तबीयत में इफाका महसूस किया तो प्यारे नबी उठे अपने घर से, 2 सहाबा के सहारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्बास और अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, 2 सहाबा के सहारे प्यारे नबी आए। प्यारे नबी आए, अबू बकर ने जो इमाम हैं प्यारे नबी की आमद को महसूस कर लिया, वो पीछे हटने गए। प्यारे नबी ने इशारा किया कि तुम अपनी जगह खड़े रहो। अबू बकर अपनी जगह इमाम की हैसियत से खड़े रहे। प्यारे नबी आए और अबू बकर के बाएं बाजू, अबू बकर के बाएं पहलू बैठ गए। इस तरह प्यारे नबी अबू बकर के इमाम थे, अबू बकर प्यारे नबी की इक्तिदा कर रहे थे और सारी जमात अबू बकर की इक्तिदा कर रही थी। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हफ्ते के दिन एक नमाज पढ़ाई और उसके बाद अपने घर वापस हो गए। अब इतवार का दिन था, इतवार का दिन यूं कहिए जिंदगी के आखिरी दिन से पहले वाला दिन। इतवार का दिन आपके घर में नादारी, गुर्बत का यह आलम, फ़क्र फ़ाक़े का यह आलम कि प्यारे नबी की ज़िरा, प्यारे नबी जो जंगी लिबास पहनते थे, आपकी ज़िरा अल्लाह अकबर एक यहूदी के पास रहन में रखी हुई है। आपने अपनी ज़िरा यहूदी के पास रहन में रखकर उससे जो है 30 सा जो है जाओ उससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है कर्ज लिया हुआ है। और हद तो ये है कि इतवार की रात, इतवार की शाम, जो पीर की रात कहना चाहिए, जो आपकी ज़िंदगी की आखिरी रात थी, माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं नादारी का ये आलम कि चराग जलाने के लिए घर में तेल भी मुयस्सर ना था और मैंने अपने पड़ोस से आरियतन जो है चराग का तेल मांग कर लिया था। हजरात सोचिए प्यारे नबी से बड़ा लीडर और कौन हो सकता है? प्यारे नबी से बड़ा रहबर और कौन हो सकता है? दुनिया के लीडरों की तारीख यही बताती है, जब वो लीडर बनते हैं गरीब होते हैं, कंगाल होते हैं, और जब वो जाते हैं दुनिया से इतना जमा के जाते हैं, उनके बाद उनकी 10 पीढ़ियां खा सकती हैं। कुर्बान जाइए, ये वो नबी हैं, ये वो पैगंबर हैं कि जिनसे आसमान से आने वाली वही कहती थी अगर आप चाहें ओहद पहाड़ को आपके लिए सोने का बना दें। ये वो नबी हैं कि जो अगर एक इशारा देते, आपके एक इशारे पर आपके सहाबा दौलत के खजाने आपके कदमों पे गिराने के लिए तैयार थे। दुनिया से जा रहे आप, इस आलम में जा रहे और इस हाल में जा रहे कि घर में चराग जलाने के लिए तेल भी मुयस्सर नहीं। हजरात, पीर का दिन था, जो आपकी जिंदगी का आखिरी दिन, पीर के दिन की फजर की नमाज हो रही है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु इमाम बन के नमाज पढ़ा रहे हैं और जमात हो रही है। प्यारे नबी ने अपने घर का पर्दा हटाया, पर्दा हटाकर झांक कर देखा नमाज हो रही है। तो आपके झांकने को सारे सहाबा ने महसूस कर लिया। अबू बकर भी जरा पीछे हटने गए। प्यारे नबी ने इशारा किया अबू बकर को कि नमाज जारी रखो, लोगों को भी इशारा किया कि नमाज जारी रखो। फिर पर्दा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हटा दिया और घर के अंदर चले गए। और फिर इसके बाद आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरी नमाज का वक्त नहीं आया। हजरात, वफात से आइन कबल
वफात से आइन कबल प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुछ बातों की वसीयतें फरमाई। वसीयतें अगर देखी जाएं बहुत हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर वो बातें जो आपने आइन वफात से कबल इरशाद फरमाई, 3 अहम बातें आपने इरशाद फरमाई। पहली बात आपने ये इरशाद फरमाई जो क़यामत तक आने वाले मुसलमानों के लिए नबी की सबसे अजीम नसीहत है, पैगंबर की सबसे अजीम वसीयत है, वो ये है लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। आपने कहा अल्लाह की लानत हो यहूदियों पर, अल्लाह की लानत हो क्रिश्चियनों पर, उन्होंने अपने पैगंबरों की कब्रों पर मस्जिदें बना ली। सहाबी हदीस रावी हदीस कहते हैं वफात से पहले यह हदीस इरशाद फरमाने का मतलब यह था कि आप अपनी उम्मत को यह पैगाम देना चाह रहे थे कि मेरी कब्र के साथ वैसा न करना, मेरी कब्र पे सजदे न करना, मेरी कब्र पे मस्जिद नहीं बनाना और मेरी कब्र की परस्तिश न करना। जिस तरह यहूद और नसारा ने अपने नेक लोगों की परस्तिश की, अपने नेक लोगों की पूजा की, अपने पैगंबरों की कब्रों पे सजदे किए, ऐ मेरे उम्मतियों मेरी कब्र के साथ ऐसा न करना। हजरात, प्यारे नबी की अजीम वसीयत, सोचो तो सही ये उम्मत किस तरह इस नबी की इस वसीयत को पामाल कर रही है। नबी ने अपनी इस नसीहत में कहा मस्जिद और कब्र इन दोनों का आपस में रिश्ता नहीं हो सकता है, इन दोनों का आपस में रिश्ता नहीं हो सकता है। ला तुसल्लू इलल कुबूर का, खबरों की सिमत नमाज ना पढ़ो, सामने कब्र हो नमाज ना पढ़ो। इन तमाम नसीहतों को इस उम्मत ने कैसे नजरअंदाज कर रखा है। आलम इस्लाम की, खुसूसन हिंदो पाक की और जो अजमी दुनिया है, अजमी दुनिया में देखिए हमने मस्जिदों को कब्रों से जोड़ा, कब्रों को मस्जिदों से जोड़ा। मस्जिद होती है और अंदर लाकर किसी नेक इंसान को दफन किया जाता है जिसको लोग नेक समझते हैं, या कब्र होती है, कब्र पर मस्जिद बनती है। कितनी दरगाहें हैं जो मस्जिद से जुड़ी हुई हैं। सोचो तो सही, नबी का नाम लेने वाले, नबी पे बार बार दरूद भेजने वाले, नबी की मोहब्बत का दम भरने वाले, नबी की इस वसीयत को इस तरह से पामाल कर रहे हैं, इस तरह से पामाल कर रहे हैं। मस्जिदों का रिश्ता कब्रों से जोड़कर शिरक हो रहा है, अल्लाह से बगावत हो रही है, और हम जबान से दावे कर रहे हैं कि हम मोहम्मद के उम्मती हैं, हम मोहम्मद के आशिक हैं, हम मोहम्मद के चाहने वाले हैं। हाँ हजरात, मोहब्बत ज़बानी दावों का नाम नहीं, मोहब्बत ज़बानी दावों का नाम नहीं। अगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत रखते हो, सच्ची मोहब्बत रखते हो, नबी की इस वसीयत को अपनाओ कि लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद, कि अल्लाह की लानत है यहूद और नसारा पर, अपने पैगंबरों की कब्रों पर उन्होंने मस्जिदें बनाई। फिर हजरात, प्यारे नबी ने अकीदे का पैगाम देने के बाद, तौहीद का मैसेज देने के बाद, बेजारगी का मैसेज देने के बाद आपने कहा अस्सलाह अस्सलाह, आपने कहा लोगों नमाज नमाज, अल्लाहु अकबर। यानी अकीदे के बाद आप इबादत का दर्ज दे रहे हैं। इबादत में रअसुल इबादत नमाज है। प्यारे नबी कह रहे हैं अस्सलाह अस्सलाह, लोगों नमाज 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 का एहतमाम करो। एक मुसलमान की सबसे बड़ी अमली शनाख्त, उसकी जिंदगी में उसके मुसलमान होने का सबसे बड़ा सबूत उसकी नमाज है, उसकी नमाज है। सोचो तो सही, हम दिल में नबी से मोहब्बत का सच्चा जज्बा रखते होंगे, लेकिन अगर नमाजों की पाबंदी ना हो, नमाजों की पाबंदी ना हो, दिल में आया नमाज पढ़ ली और दिल में आया नमाज छोड़ दी। हजरात, हम में कितने मुसलमान हैं जिन्हें सिर्फ जुमा की नमाज पढ़ने की तौफीक होती है, बाकी नमाजों को भूले से मस्जिद नहीं आते। कितने ऐसे हैं कि एक नमाज पढ़ी तो 2 नमाज छोड़ दी। हजरात, नमाज का एहतमाम करो, ये प्यारे नबी की नसीहत है, प्यारे नबी की वसीयत है। जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, प्यारे नबी ने कहा मेरी आंखों की ठंडक, मेरी जिंदगी का चैन, मेरी जिंदगी का सुकून नमाज में रख दिया गया। तो दूसरी नसीहत नमाज की फरमाई, और तीसरी नसीहत कहा वमा मलकत ऐमानुकुम, वमा मलकत ऐमानुकुम, लोगों अपने गुलामों और लौंडियों का लिहाज रखो। देखिए, ये तीनों नसीहतें बड़ी जामे नसीहतें। पहली नसीहत अकीदे, सेहत अकीदा की तालीम, दूसरी नसीहत इबादत की तालीम, हुकूकुल्लाह की तालीम,
तीसरी नसीहत में हुकूकुल इबाद की तालीम, बंदों के हुकूक, और बंदों के हुकूक में कई किस्में हैं। प्यारे नबी ने बंदों में जो सबसे कमज़ोर तबका है, ग़ुलामों का, लौंडियों का, जिन्हें उस ज़माने में रगड़ा जाता था, कुचला जाता था, मसला जाता था, उनके साथ जानवरों जैसा सलूक होता था, ताहम वो इंसान थे। कुर्बान जाइए, प्यारे नबी इस दुनिया में आए, कमज़ोरों के हुकूक के अलमबरदार बनकर आए। यही वजह है दुनिया से जाते हुए आपकी ज़बान पर कमज़ोर इंसानी तबकात के हुकूक की बात थी। आप कह रहे थे अपने ग़ुलामों के साथ हुस्न सलूक करो, अपनी लौंडियों के साथ हुस्न सलूक करो। इसका मतलब ये हुआ सोसाइटी और समाज के जो गरीब तबकात हैं, कमज़ोर तबकात हैं, मजबूर तबकात हैं, नादार तबकात हैं, किसी को उसकी गुर्बत की वजह से हकीर न समझो, किसी को उसकी गुर्बत की वजह से हकीर न समझो। कमज़ोरों को उनके हुकूक दिया करो, कमज़ोरों के हुकूक न मारा करो। ये 3 बुनियादी नसीहतें थीं। हजरात, पीर के दिन जो बिल्कुल आखिरी मरहला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात का, जिसे साअतुल इह्तिज़ार कहा जाता है, साअतुल इह्तिज़ार कहा जाता है, जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी सांसें हो रही थीं, आपकी ज़िंदगी की सांसें ख़त्म हो रही थीं, वैसे वैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेचैनी बढ़ने लगी, बेइत्मीनानी बढ़ने लगी, बेकली होने लगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा की गोद में था। माई आयशा फरमाती हैं कि बाजू एक बर्तन में पानी रखा हुआ था, आप बेचैन हो जाते, पानी लेते अपने हाथ से और अपने चेहरे पे मला करते थे और बेचैनी के आलम में फरमाते थे, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात, ला इलाहा इल्लल्लाह इन्ना लिल मौति सकरात। आप कहा करते थे कि ला इलाहा इल्लल्लाह, सकरात का वक्त बड़ा नाजुक वक्त होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, सकरात की तकलीफ बड़ी अजीम तकलीफ होती है। फातिमा आपकी बेटी, आपकी लख्ते जिगर सराने बैठी हुई थी, बाप की तकलीफ को देखकर तड़प गई। फातिमा रजी अल्लाह अन्हा ने कहा, वाह कर व अबता, वाह कर व अबता, हाय अब्बा जान की तकलीफ, हाय अब्बा जान की तकलीफ। फातिमा को तड़पते हुए देखकर प्यारे नबी ने कहा, लैसा अला अबी की कर्बुन बाद हादल यौम, आपने कहा कि बेटा परेशान होना मत, आज के बाद तेरे बाप के लिए कोई तकलीफ नहीं है, आज के बाद आराम ही आराम है और ये ज़िंदगी की आखिरी तकलीफ है। माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि आपका सर मेरे गोद में था कि इतने में मेरे भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर दाखिल हुए। अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर जो प्यारे नबी के साले लगते हैं, घर में दाखिल हुए, हुजरे में दाखिल हुए और मिसवाक कर रहे थे। वो प्यारे नबी ने नजरें मिसवाक पे जमा दी, बोल नहीं सक रहे थे, प्यारे नबी ने नजरें मिसवाक पे जमा दी। हजरत आयशा समझ गई। हजरत आयशा ने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल क्या मिसवाक चाहिए? प्यारे नबी ने सर के इशारे से कहा कि हाँ। अब्दुर्रहमान ने अबी बकर से मिसवाक ली और उस मिसवाक को हजरत आयशा ने चबाकर नरम किया और नरम करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसवाक करते रहे, मिसवाक करते रहे। हजरत याद रखो, अल्लाह के पास जाना है, पाक हालत में जाना है, हर तरह की पाकी। आपने देखा हजरत खुबैब के हवाले से हमने आपको बताया था इज़नी दुरूस में कि हजरत खुबैब को जो सूली पर लटकाया गया, खुबैब ने क्या किया? उस तरह मांगा, कहा कि उस तरह जो मैं अपने रब से मिलने जाने वाला हूं, मैं अपने बाल वगैरह साफ कर लूं। अल्लाह के पास जा रहे हो, पाक साफ होकर जाओ। रूह निकलने के बाद लोग तो गुस्ल देकर साफ करेंगे ही, लेकिन जिंदगी रहते हुए अपने आप को जितना पाक कर सकते हो पाक कर लो। प्यारे नबी ने मिसवाक किया। फरमाती हैं आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा, कमजोरी के बावजूद बिल्कुल सेहत और तंदुरुस्ती की हालत में जैसे आप मिसवाक करते थे, मिसवाक करने लगे। और फरमाती हैं कि फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उंगली आसमान की जानिब उठी और आपकी नजरें छत को देखने लगी
उंगली आसमान की जानिब उठी हुई है और आपकी निगाहें छत पे जमी हुई है और आपके होंठ हरकत कर रहे हैं। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैं अपना कान करीब ले गई, सुनने लगी कि प्यारे नबी क्या फरमा रहे हैं। आप फरमा रहे थे, मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन अल्लाहुम्मा इग़फ़िरली वरहमनी वअल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। फरमाती हैं प्यारे नबी ये फरमा रहे थे उंगली उठाए हुए, ऐ अल्लाह मुझे मिला दे, मुझे मिला दे, पैगंबरों से मिला दे, सिद्दीकीन से मिला दे, शुहदा से मिला दे, सालिहीन से मिला दे। ऐ अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ऐ अल्लाह मुझ पे रहम फरमा, ऐ अल्लाह तू मुझे अपने पास बुला ले। अल्लाहुम्मा अल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला। फरमाती हैं ये आखिरी जुमला, अल्लाहुम्मा अल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला, अल्लाहुम्मा अल्हिक़नी बिर्रफ़ीक़िल आला 3 मरतबे आपकी ज़बान से निकला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये उंगली जो उठी हुई थी धीरे धीरे ऐसे ही पड़ गई और आफ़ताब रिसालत पीर के दिन बिल्कुल चाश के वक्त 60 पर 3 साल 4 दिन की उम्र में हमेशा के लिए ग़ुरूब हो गया। आफ़ताब रिसालत पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल की तारीख थी, 60 पर 3 साल 4 दिन की उम्र में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हो गए। आपने पीर के दिन 12 रबीउल अव्वल की चाश के वक्त अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। हज़रात सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, सहाबा के जज्बात का अजीब आलम था। अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे नबी की वफ़ात की बात अगर हम करें तो अनस फरमाते हैं कि जिस दिन प्यारे नबी मक्का से हिजरत करके मदीना आए थे, मक्का से हिजरत करके मदीना आए, आपके आने से मदीने की गली गली रोशन हो गई। लेकिन जिस दिन आप रुखसत हुए, आपकी वफ़ात हुई, तो सुभान अल्लाह हमारी नज़रों में सारा मदीना तारीक हो गया। जिधर नज़र उठाते सूरज की रोशनी के बावजूद मदीने की हर गली हमें तारीक नज़र आती, इसलिए कि आज ये सूरज तो तुलू हुआ है मगर आफ़ताब रिसालत ग़ुरूब हो चुका है, आफ़ताब रिसालत ग़ुरूब हो चुका है। आफ़ताब रिसालत की किरणें न थी, मदीने की गलियां सहाबा को तारीक नजर आ रही थी। सहाबा फरमाते हैं प्यारे नबी की अभी रूह कब्ज़ हुई और अभी आपको दफन भी नहीं किए हैं, आपकी लाश घर में मौजूद है। हमने महसूस किया हमारे दिल बदल गए हैं, दिलों की कैफियत बदल गई है। नबी जब हमारे दरमियान जिंदा थे उस वक्त हमारे दिलों की कैफियत और थी, और नबी दुनिया से जब रुखसत हो गए तो हमने महसूस किया कि हमारे दिलों की कैफियत बदल गई। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा अपने जज्बात का इजहार इन अल्फाज में उन्होंने शेर में किया, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा, सुब्बत अलैया मसाइबुल लौ अन्नहा, सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया, कि मेरे बाप की वफात से मुझ पर गम के ऐसे पहाड़ टूटे कि अगर वो दिन के उजालों पर टूट पड़ते तो दिन के उजाले भी काले हो जाते और सियाह हो जाते। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जज्बात में आ गए, हजरत उमर जज्बात से मगलूब हो गए। हजरत उमर ने कहा कौन कहता है कि प्यारे नबी की वफात हुई? प्यारे नबी की वफात नहीं हुई है, आप जिंदा हैं। और आप मूसा अलैहिस्सलाम जैसे अल्लाह से मुलाकात के लिए 40 दिन के लिए तूर पर गए थे, प्यारे नबी गए हैं और 40 दिन बाद आप वापस आएंगे। नाकाबिल यकीन खबर थी उमर के लिए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु, अजीब जज्बाती आलम था, कश्मकश का आलम था। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने इस जज्बाती मौके पर उम्मत को संभाला। अबू बकर दौड़े दौड़े आए, उम्मुल मोमिनीन के हुजरे में दाखिल हुए। प्यारे नबी के चेहरे को उड़ा दिया गया था, कपड़ा हटाया और बेसाख्ता प्यारे नबी का बोसा लिया, प्यारे नबी की पेशानी का, प्यारे नबी के चेहरे का बोसा लिया और ज़ारो क़ितार रोने लगे। और रोने के बाद अपने आसाब पर, अपने जज्बात पर, अपने आंसुओं पे काबू रखा, इसलिए कि इस वक्त जरूरत है उम्मत को संभालने की, इस वक्त जरूरत है उम्मत को संभालने की। ये वो वक्त है कि उमर बिन खत्ताब जैसे ताकतवर इंसान के जज्बात भी जवाब दे गए हैं जब वो मानने के लिए तैयार नहीं कि नबी का इंतकाल हुआ है। जरूरत थी एक ऐसे रहबर की, एक ऐसे इमाम की जो उम्मत को इस वक्त संभाले। अबू बकर ने आंसू बहा दिए और बहाकर सीधे मस्जिद नबवी के मेंबर पे खड़े हो गए और वो तारीखी जुमला इरशाद फरमाया था, अला इन्ना मन काना यअबुदु मुहम्मद फइन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़द मात व मन काना यअबुदु अल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अबू बकर ने कहा, लोगों जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा है वो सुन ले,
जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता रहा वो सुन ले कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो चुकी है। और जो अल्लाह की इबादत करता रहा हो वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है, वो हमेशा से जिंदा रहा, वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगा, उसे कभी मौत नहीं आती। और फिर अबू बकर सिद्दीक ने वो आयत तिलावत की, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल क़द ख़लत मिन क़ब्लिहि रुसुल अफ़ इन मात औ क़ुतिला इंक़लबतुम अला अअक़ाबिकुम वमन यन्क़लिब अला अक़िबैहि फ़लन यदुर्रल्लाह शैअा व सयजज़िल्लाहु शाकिरीन, कि मोहम्मद तो बस अल्लाह के रसूल हैं, अगर वो इंतकाल कर जाएं या शहीद हो जाएं क्या तुम इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो जाओगे? हज़रत उमर फरमाते हैं, सहाबा फरमाते हैं, अबू बकर ने यह आयत पढ़ी तो हमें ऐसे लगा कि जैसे ये आयत अभी अभी नाजिल हुई हो। हज़रत अबू बकर ने जो जुमला इरशाद फरमाया, क्या मतलब था कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इबादत करता आ रहा वो सुन ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका है, और जो अल्लाह की इबादत करता रहा वो सुन ले कि अल्लाह जिंदा है। मतलब यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से दीन ख़त्म नहीं हो गया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात से दीन जिंदा है। इसलिए कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बंदगी की दावत देने के लिए नहीं आए थे, वो रब की बंदगी की दावत देने के लिए आए थे। तो लिहाजा आपकी वफात हो चुकी तो आपके दिए हुए मैसेज, आपके पैगाम और आपकी दावत पे कायम रहो और आपके दीन को मजबूती से थामे रहो। हजरात, पीर के दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मंगल के रोज गुस्ल दिया गया। और सहाबा ने क्यों ताकीर हुई? इसलिए कि सहाबा ने जरूरी समझा कि प्यारे नबी की तदफीन से पहले खिलाफत का मसला हल हो जाए, प्यारे नबी की तदफीन से पहले खिलाफत का मसला हल हो जाए, आपकी तदफीन से पहले यह तय हो जाए कि आपके बाद बहिसीत खलीफा आपकी जगह कौन लेगा। इसलिए कि यह उम्मत बगैर खलीफा के जी नहीं सकती, बगैर इमाम के जी नहीं सकती, बगैर हाकिम के जी नहीं सकती, बगैर रहबर के जी नहीं सकती, बगैर रहनुमा के जी नहीं सकती। इज्तिमाइयत को कायम रखने के लिए हाकिम वक्त ज़रूरी है, बादशाह वक्त ज़रूरी है, अमीर वक्त ज़रूरी है, रहनुमा ज़रूरी है, रहबर ज़रूरी है। इसीलिए सहाबा ने पहले खिलाफत के मसले को हल किया और सारे सहाबा ने मुत्तफिक होकर अबू बकर सिद्दीक को मुंतखब किया। और सहाबा ने कहा कि जिस अबू बकर को प्यारे नबी ने अपनी जिंदगी में अपनी जगह इमामत के लिए खड़ाया हो, अपने मुसल्ले पर अपनी जगह इमामत के लिए खड़ाया हो, उसी अबू बकर को यह हक पहुंचता है कि नबी के बाद नबी की कुर्सी पर बैठने का भी हक उसी अबू बकर को है। नबी के मुकाम पे खड़े होने का हक जिस अबू बकर को मिला, नबी की कुर्सी पे बैठने का हक भी उसी अबू बकर को मिलना चाहिए। खलीफे का इंतखाब हुआ और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया गया। आपको गुस्ल देने की बात हुई, सहाबा कहते हैं हम सोचने लगे कैसे गुस्ल दिया जाए। अनुजर्रिदु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा नुजर्रिदु मौताना, कि जिस तरह हम अपनी किसी मय्यत को गुस्ल देते हैं, कपड़े निकाल कर पूरी तरह से बरहना करके एक चादर से ढांप के गुस्ल देते हैं, क्या अल्लाह के नबी को भी वैसे ही गुस्ल दे? मशवरा हो रहा था। कहते हैं अचानक जितने सहाबा मशवरे में थे सब पर एक तरह की गुनूद की तारी हुई और कमरे के कोने से आवाज आई कि नबी को उसी हालत में गुस्ल दो कि उनके कपड़े ना निकाले जाएं, उनका लिबास उन्हीं पर रहे। चुनांचे आपका लिबास गुस्ल देते वक्त निकाला नहीं गया, उसी हालत में आपको गुस्ल दिया गया। गुस्ल के बाद मसला आया कि आपके लिए सादी खबर बनाई जाए या बोगली खबर बनाई जाए, सादी खबर बनाई जाए या बोगली खबर बनाई जाए। सहाबा ने कहा हम इस्तिखारा करते हैं, अल्लाह से इस्तिखारा करते हैं और दुआ करते हैं। दोनों सहाबा को बोले, एक सहाबी सादी खबर बनाने में मशहूर थे और एक सहाबी बोगली खबर बनाने में मशहूर थे। कहा दोनों को बुलाते हैं, जो पहले आएगा वो अपनी खबर बनाएगा। दोनों को बुलाया गया, वो सहाबी पहले आए जो बोगली खबर बनाते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बोगली खबर बनाई गई। मसला आया कि प्यारे नबी को कहां दफन किया जाए। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने वह हदीस सुनाई कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि नबी और पैगंबर के सिलसिले में यह मामूल है कि नबी का इंतकाल जिस जगह होता है नबी को वहीं दफन किया जाता है। चुनाचे उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह अन्हा का हुजरा
कमरा जहां आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली थी, तय हुआ कि वही कमरा आपका मदफन होगा, आपका मकबरा होगा सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। और इस तरह माई आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के ख्वाब की ताबीर का पहला हिस्सा पूरा हुआ। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी ज़िंदगी में ख्वाब देखा था, उनकी गोद में 3 चांद आ गिरे हैं, उनकी गोद में 3 चांद आ गिरे हैं। ये ख्वाब हजरत आयशा ने देखा था। प्यारे नबी की कब्र जब उनके कमरे में आ गई तो 1 चांद आ गया, बाद में अबू बकर और उमर आ गए, बाकी 2 चांद आ गए, उनके कमरे में 3 कब्रें आ गईं। यही ताबीर थी उनकी उस ख्वाब की जिसमें उन्होंने देखा था कि उनकी गोद में 3 चांद आ गिरे। हजरात, प्यारे नबी की नमाज जनाजा, प्यारे नबी की नमाज जनाजा किसी ने जमात के साथ नहीं पढ़ाई, इमाम बनकर नहीं पढ़ाई, इसलिए कि किसी को हिम्मत न थी, किसी को जुरत न थी, किसी के अंदर इतना हौसला ना था कि वो इमाम बन के प्यारे नबी की नमाज जनाजा पढ़ा था। लोगों ने अलग अलग नमाज पढ़ी, अलग अलग नमाज पढ़ी सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि। पहले आपकी नमाज आपके घर वालों ने पढ़ी। आपके घर वाले जब हुजरे से बाहर निकले नमाज पढ़कर, मुहाजिर सहाबा बारी बारी गए, वो पढ़कर आए। मुहाजिरीन पढ़ चुके, अंसारी सहाबा दाखिल हुए, उन्होंने बारी बारी नमाज अदा की, वो बाहर आए। फिर खवातीन दाखिल हुई, उन्होंने बारी बारी नमाज पढ़ी, वो बाहर आई। फिर बच्चे दाखिल हुए, उन्होंने बारी बारी नमाज पढ़ी। इस तरह प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि। और देखने की बात यह है, आपका इंतकाल हुआ पीर के रोज़ और आपकी तदफीन हुई चहारशंबे की रात। पीर का पूरा दिन गुजरा, रात पूरी गुजरी, मंगल का पूरा दिन गुजरा, चहारशंबे की रात के आखिरी पहर, और आपको मालूम होना चाहिए किसी भी लाश को अगर इतना वक्त रखा जाता है, लाश सड़ जाती है, बदबू शुरू हो जाती है। लेकिन सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाश जैसी की वैसी ताज़ा थी। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु कहते थे, लक़द ताब हय्यन व मय्यिता। प्यारे नबी जिंदगी में भी तय्यब थे, आप मर कर भी तय्यब रहे, जिंदगी में भी आप पाकबाज थे, वफात पाकर भी आप पाकबाज रहे। ये बात क्यों इरशाद फरमाई? कोई भी इंसान जब इंतकाल करता है, कोई भी इंसान मरे, कोई भी इंसान इंतकाल करे, इंतकाल के बाद उसके पेट से गिलाज़त निकलती है। इंतकाल के बाद इंसान के पेट से गिलाज़त निकलती है, और हर इंसान के पेट से निकलती है। अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, प्यारे नबी के पेट से कोई गिलाज़त नहीं निकली। आप तय्यब थे, वफात पाकर भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो तय्यब रहे। आपकी ज़िंदगी भी पाकबाज थी और आपकी वफात भी जो है सुभान अल्लाह पाकीज़गी का नमूना थी। हज़रात, प्यारे नबी की वफात बहुत अजीम सानिहा, बहुत बड़ा हादिसा, इंसानियत के लिए बहुत बड़ा खसारा इस हैसियत से। प्यारे नबी की वफ़ात के बाद अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा गालिबन उम्मे हानी या उम्मे आयमन थी, उनके घर गए, रो रही थी। अबू बकर और उमर ने कहा, क्यों रो रही हो? अल्लाह के नबी के लिए अल्लाह के पास जो नेमतें थीं वो बहुत बेहतर हैं। अल्लाह के नबी अल्लाह के पास चले गए तो उन्होंने जवाब दिया, मैं नबी की वफ़ात पे नहीं रो रही हूँ, मैं इसलिए रो रही हूँ कि नबी की वफ़ात से आसमान से जो वही आया करती थी, वही का वो सिलसिला हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका। वही इलाही का नुज़ूल बहुत बड़ा खैर था, बहुत बड़ी बरकत थी। नबी की वफ़ात से वही का सिलसिला ख़त्म हो गया। इंसानियत का बहुत बड़ा खसारा थी आप सल्लल्लाहु की वफ़ात, और आपकी वफ़ात का गम, आपकी वफ़ात का रंज किसी भी इंसान की वफ़ात से बढ़कर है। इसीलिए हदीसों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात भी इरशाद फरमाई कि लोगों, तुम में से किसी के अजीज़ का इंतकाल हो जाए, तुम में से किसी के रिश्तेदार का इंतकाल हो जाए, गम हो, रंज हो, तो लोगों मेरी वफ़ात के रंज को याद कर लो, मेरी वफ़ात के गम को याद कर लो, मेरी वफ़ात के दुख को याद कर लो। तुम्हारे अजीज़ों, तुम्हारे रिश्तेदारों के वफ़ात का गम हल्का हो जाएगा, कम हो जाएगा। हज़रात, इस तरह प्यारे नबी की ये पाकीज़ा ज़िंदगी, ये मिसाली ज़िंदगी, ये नमूने वाली ज़िंदगी, ये उसवे वाली ज़िंदगी, ये क़ुदवे वाली ज़िंदगी ख़त्म होती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही ततिम्मुस्सालिहात। अल्लाह का शुक्र है कि आज से 23 दिन पहले जो सिलसिला हमने शुरू किया था और आज वो ख़त्म हो रहा है। और ये मुनासबत भी मुलाहजा कीजिए कि नबूवत की कुल ज़िंदगी,
नबूवत की कुल ज़िंदगी नबी बनने के बाद आप 23 साल ज़िंदा रहे और हमारे ये जो मुहाज़रात और लेक्चर्स हुए ये भी मुकम्मल 23 दिन में हुए हैं। फलिल्लाहिल हम्द। हज़रात, मैं इस मौके से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ इस मस्जिद इब्राहीम खलीलुल्लाह के ज़िम्मेदारान, सदर, सेक्रेटरी और तमाम ट्रस्टियान का, और IIC इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर के तमाम ज़िम्मेदारों का। आप लोगों ने इस प्रोग्राम को तरतीब देकर, अल्लाह अकबर, पता नहीं आपके अंदर क्या खुलूस था, किस जज्बे से आप लोगों ने प्रोग्राम रखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत कामयाब प्रोग्राम आपने किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला आपने जिन जज्बात को लेकर ये प्रोग्राम किया है, अल्लाह आपके जज्बात को कबूल फरमाए। और मैं सबसे पहले ये दुआ करूँगा कि अल्लाह इखलास की तौफीक अता फरमाए, सबसे पहले कहने वाले को, फिर मुंतज़िमीन को, अल्लाह हम सबको इखलास की तौफीक अता फरमाए। इसलिए कि अगर इखलास ना हो, रियाकारी ना हो, हमारे ये सब काम बेकार हो जाएंगे। और खुसूसन हजरात, मैंने शुरू से देखा बाज़ नौजवान ज़िम्मेदारों में इस तरह आगे बढ़ चढ़ कर उन्होंने अपना वक्त, अपनी मेहनत, अपनी दौलत, अपना पैसा, सब कुछ इस प्रोग्राम के पीछे खर्च किया। मैं खुसूसन उनके हक़ में भी दुआ करूँगा कि रब्बुल आलमीन उनके इन तमाम मेहनतों को कबूल फरमाए और अल्लाह ताला उन्हें और उनके माँ बाप, उनके वालिदैन को जज़ाए खैर अता फरमाए, जिन्होंने उनकी ऐसी तरबियत की कि उन्होंने अपनी दूर अंदेशी से ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम मुनाकिद किया। और मैं तमाम हाज़रीन का, शुरका इजलास का और हमारी माओ बहनों का, आप सबका शुक्र अदा करता हूँ। मैं तो वल्लाह समझ रहा था 23 दिन की ये मुद्दत बहुत तवील मुद्दत है। मैं तो शुरू में जब 23 दिन की बात हुई तो लोग पता नहीं आएंगे, रहेंगे, सुनेंगे, बोर हो जाएंगे, लेकिन वल्लाह हमने देखा पहले दिन से जो तादाद रही आखिरी दिन तक वो तादाद बरकरार रही। और अक्सर चेहरे वो हैं जो बिला नागा आते रहे, या कम से कम अक्सर दिन तो आते रहे। हमारी माएँ बहनें भी बड़े जज्बे के साथ आती रहीं और हमने सुना कि ख़वातीन इतनी तादाद में आईं कि उनके लिए वहाँ बैठने के लिए जगह ना रही। यकीनन प्यारे नबी से आपकी ये मोहब्बत की दलील है। ये हमारा ये प्रोग्राम जो कामयाब हुआ है, कामयाबी के पीछे ये एक ही राज है कि जिस शख्सियत के हवाले से प्रोग्राम हुआ, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस शख्सियत से हमारी और आपकी सच्ची मोहब्बत है, हमारी और आपकी सच्ची मोहब्बत है और नबी की पैरवी का सच्चा जज्बा है, जो शायद अल्लाह ताला के नज़दीक कबूल हुआ है। अल्लाह ताला ने मुंतज़िमीन इजलास के इन जज्बात को शायद कबूल किया है कि रब्बुल आलमीन ने इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ इख्तिताम तक पहुंचाया है। मैं दुआ करता हूं। और जैसे मैंने कहा, यहाँ मैंने ऐसे नौजवान देखे और ऐसे मुसल्ली देखे, ऐसे सामीन देखे जिन्होंने बड़ा खुलूस दिया और बड़ी मोहब्बतों से नवाजा। अल्लाह ताला आप सबकी मेहनतों, कोशिशों, काविशों को कबूल फरमाए। दुआ है कि रब्बुल आलमीन मुझे और आपको सीरत रसूल के सांचे में अपनी अमली ज़िंदगी को ढालने की तौफीक अता फरमाए। हमारा चलना फिरना, खाना पीना, सोना जागना, हमारी ज़िंदगी का एक एक काम उसवे रसूल की रोशनी में सुन्नत रसूल के मुताबिक हो जाए। और साथ ही मेरी ये तमन्ना है, मेरी आरज़ू है कि जिस तरह इस साल हम जमा हुए, हमारी आइंदा छुट्टी में भी अल्लाह करे कि इसी तरह का कोई प्रोग्राम लेकर हम इस मुकाम पर जमा हो सके। अल्लाहुम्मा आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।